I hope that they are going to continue in a very systematic manner, so that we, including me, all of us can continue to grow as lawyers. आज का जो topic है professional ethics is something that I think, you know, in any profession, ethics are very important, and I think any meaningful profession has its own rules of ethics, whether it be medicine or whether it be journalism or whether it be engineering. All they are required to abide by certain ethics. But I think, in my opinion, lawyers have a duty, a responsibility in many ways that goes above and beyond what many other professions have. Because we are dealing with society, we are helping people engage with our state and engage with our legal system in order to get their rights. So we are important go-betweens between the public and between the state. And without us, without the roles that we play, I don't think it would be possible for the state to comply with its obligations to its citizens, and for any of our laws, for our constitution to have meaningful effect. तो इस वजह से हम मुआशरे में एक बहुत अहम किरदार प्ले करते हैं as lawyers, and I hope I'm not biased being a lawyer, but I think objectively that's true. इस वजह से ये बहुत अहम है, I think, कि हम अपने प्रोफेशन के जो एथिक्स हैं उनको हम हर वक्त साथ लेकर चलें. Because if we compromise on the ethics in our profession, then that compromises our ability to assist, to help the public, and also to give meaning to the constitution and to give meaning to the laws that hold us together. So that's why I think ethics in this profession are crucial. I think इस society में, इस माशरे में लोगों का जो वकीलों का जो impression है वो mixed है. हम सुनते हैं कि obviously एक लिहाज से बहुत एक respect है, admiration भी है. मैं देखती हूँ कि लोग encourage करते हैं अपने बच्चों को generally speaking कि वो वकालत में जाएं. कुछ तबके में हम ये देखते हैं कि ये होता है, लेकिन at the same time unfortunately कुछ negative notions भी हैं. कभी-कभी जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मैं वकील हूँ, तो फिर उनकी तरफ से हमेशा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होता. तो उसमें शायद कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, शायद कुछ हमारी भी खामियां हैं एज ए प्रोफेशन, और हम कुछ डेली जो देखते भी हैं कि कुछ वाक़े जो पब्लिसाइज होते हैं जिसमें वकील कई केस पब्लिकली वायलेंट हो रहे होते हैं, या पब्लिकली उनको दिखाया जाता है कि वो शायद साथ फेक कर रहे होते हैं, शायद उसकी वजह से भी एक नेगेटिव इम्प्रेशन होता है. लेकिन आई थिंक इन सब के बावजूद हमको ये समझना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारे एथिक्स क्या हैं एज अ प्रोफेशन, एंड इवन एज इंडिविजुअल लॉयर्स. वी शुड नॉट think and consider what are the stereotypes, what are the misconceptions, what do people think I should do as a lawyer. I think we should think about what are our ethical obligations in fact. And with that, I think जो हमारे जो प्रोफेशनल एथिक्स की जो बुनियाद है, वो जिस तरह उमर साहब ने मेंशन किया था, वो यहाँ पर पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स में दी गई है. और ये चैप्टर 12 है जहाँ पर है हमारे कैनन्स ऑफ कॉन्डक्ट. सो दीज आर द rules and the principles that we are required to follow. So they are given to us, they are put before us. कुछ हम देखेंगे जो मैं डिस्कस करूँगी, कुछ काफ़ी क्लियर होंगे जिनमें आपको कोई ज़्यादा एम्बिग्यूटी नहीं होगी. कुछ होंगे शायद जिसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हो, या कुछ सिचुएशंस में शायद क्लियर ना हो कि कुछ इस तरह से अप्लाई किया जाए. But we can go ahead and go over some of the very key canons laid down here. तो जिस तरह उमर साहब ने mentioned that the canons lay down our duties as lawyers to the court, our duties as lawyers to clients, our duties to other advocates, to our colleagues, and then also our duties to the public at large. So let me start
with the duties that are laid down to the court. In my view, हालांकि इन कैनन्स के अंदर एक बहुत क्लियरली एक हायरार्की नहीं दी गई, लेकिन क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है, I would say कि the nature of our profession requires that our duty to the court be our primary consideration when we are in the courtroom and when we are appearing before the judge. तो उसमें जो सबसे पहले जो ड्यूटी ले डाउन की गई है वो आई थिंक बहुत बेसिक है, तो शायद सबको यहाँ पर मालूम भी होगा that it is the duty of the advocate to maintain towards the court a respectful attitude, and that's not just in order to appease the individual judge, but that is also because it is required of us to maintain the dignity of the court. अगर हम कोर्ट की dignity maintain नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट की legitimacy का क्या impact होगा? So maintaining a respectful attitude towards the court is very important, and this can take many forms. I think कि जब हम देखते हैं कि कुछ cases में unfortunately there are violations of this, and sometimes unfortunately we see violations of this every day. अब judges को कभी हम देखते हैं कि वकील while the judge is speaking are interrupting the judge. Or the judge, while you are pleading a case for your client, the judge wants to interrupt you and has a certain questions to ask of you. Sometimes you observe there's a tendency to say, I'm not going to answer the question posed by the judge because I don't think that that's relevant. I want to go ahead with my case. But that is not only will that not help you in your pleading, but B, it's important to remember, I think as a lawyer, that your duty is to answer and to clarify any questions that the judge has. Our duty is not to assume that the judge is not asking the relevant questions, that the judge is not capable of understanding what we're saying. That is not us complying with our duty. Our duty is to satisfy the court, which means that we have to come in with an assumption that ultimately it is the judge who is in the best position to decide our case either way. So maintaining the respectful attitude to the court is very important. अब इस canon में ये भी दिया गया है कि obviously this duty we know is mutual. अगर हम judge को respect करेंगे तो obviously that means कि unnecessarily the judge must also adopt a respectful attitude towards the bar. And of course, but today here we're not here to discuss the conduct of the judges, so I won't go into detail about that. But I think ultimately our responsibility as advocates is to treat the court with respect and to understand and to accept that ultimately it is the judge who is in the best position to decide the case, because that is the nature of the relationship between the bar and the bench. Achha, related to this, to Sawal, the crucial is also that as advocates, our duty is to guide the judge correctly and honestly and to the best of our abilities. Now, obviously as lawyers, क्योंकि हमारा system adversarial है, हम एक party को represent कर रहे हैं, तो हमारी जाहिर है ये inclination होती है कि हम वो facts और वो कानून प्रेजेंट करें जो हमारी साइड की मदद करेगा. और वाकई जब हमारी एक ड्यूटी टुवर्ड्स आवर क्लाइंट इज दिस, बट दिस कैन नेवर मीन दैट वी मिसरिप्रेजेंट द फैक्ट्स और दैट वी मिसरिप्रेजेंट द लॉ. I think misrepresenting the facts is often not a grey area. We know कि जो हमारी जो pleadings हैं, जो हम claims डाल रहे हैं, जो हम petition डाल रहे हैं, जो हम affidavits draft कर रहे हैं, उसमें हम गलत facts ना state करें. That is our duty, and it is our duty to tell the client that when they are going to swear in an affidavit, they have to ensure that they are telling the truth. If the client is inclined to lie in the affidavit, or if the client is inclined to misrepresent in the affidavit, then it is our duty to advise the client that lies, you cannot swear under oath on statements that are incorrect. It is a violation of our duty to encourage the client
to put forward incorrect facts in the affidavit, or to, and we must not feel compelled to listen to our client if our client is telling us to make pleadings before the court that I as a lawyer know to be false. That is a violation of my duty to the court. अच्छा, इसमें तो facts के बारे में तो I think काफ़ी clear cut है. कभी-कभी तो I think कानून के बारे में ऐसा होता है कि हमारे सामने एक केस आता है, client आता है, they have certain they want legal relief on a particular issue, और हमें शायद ये मालूम हो कि जो कानून है या जो केस लॉ है इस इशू पे, ये पूरी तरह से हमारी साइड को सपोर्ट नहीं करता, और कुछ केस लॉ है इस पॉइंट पर जो शायद दूसरी साइड के फेवर में हो. तो इसको क्योंकि मैं थोड़ा सा सेशन इंटरैक्टिव भी करना चाहती हूँ, आप यहाँ पर प्रैक्टिसिंग मटीरियल है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को ऐसा ये जब आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन पेश आए कि क्लाइंट आपके पास आए, उनको कहें कि हमारा ये केस है, हम ये रिलीफ चाहते हैं, लेकिन आपको पता हो कि जो कानून है वो पूरी तरह से आपके क्लाइंट के केस की बुनियाद नहीं ठीक बन सकती, तो जनरली आप क्या करते हैं उस सिनारियो में? जी मैम, अगर ऐसा कुछ हो, यानी उसमें लॉ के अंदर उससे रिलीफ ना मिल रहा हो, तो कोशिश ये की जाती है कि आउट फ्रॉम द कोर्ट सेटलमेंट किस्म के इशूज सब उसमें कोशिश ये की जाती है कि आउटसाइड फ्रॉम द कोर्ट जो है वो एक सेटलमेंट हो जाए, और सेटलमेंट में जो पॉइंट्स हैं उनकी या जो रिलीफ वो चाहते हैं, मतलब वो ना मिले लेकिन एक हद तक उनको रिलीफ मिल जाए, तो आउटसाइड फ्रॉम द कोर्ट्स जो है वो सेटलमेंट हो जाए. अगर लॉ के अंदर जो है वो उनको रिलीफ नहीं मिल रहा हो, तो लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आउटसाइड फ्रॉम द कोर्ट सेटलमेंट करवा. जी मीडिएशन का जो एक सिस्टम, तो अगर कोर्ट से हमें आ रहा है समझ में कि रिलीफ नहीं मिल रहा, तो हम जो है उनको मीडिएशन साइड में ले आएंगे, और दोनों पार्टीज को कि अगर वो जो एग्री होंगे तो उन दोनों से मीटिंग्स कर उन दोनों के इश्यूज को मद्देनजर रखकर, और फिर उन्हीं के सामने उन्हीं के फैसले को रखेंगे कि भाई आप लोग जो है अब दोनों इस तरीके से अगर एग्रीमेंट करें या इस तरीके से अपना मसले को हल करना चाहें आप ही के मुताबिक, तो उनको हम मीडिएशन उसमें लेकर आएंगे. होता ये है कि हमारे पास क्लाइंट आता है ना, वो ये समझता है कि मेरा केस जो है राइट है और मुझे इस पर रिलीफ मिलना चाहिए. उसकी जहन में तो ये होता है कि वकील जो होता है उसे पता होता है कि यार केस तो चलाना मैंने भी है, तो अब उसमें मुझे समझ रहा हूँ कि भाई इसमें आप कन्विक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उसका ये होता है कि नहीं आप किसी से लड़े, आपकी केस लड़े हुए ये हमारे यहाँ ये बड़ा सबसे बड़ा जो है ना ये फैक्ट हमारे लिए होता है कि आपकी फेस पर होना ज़रूरी है. अगर आपकी फेस पर हुआ तो भले आपने भी दोनों का केस किया हो मतलब किया हुआ, तो उसको पे भी आपको तब के रिहाई दिलवा दें. तो ये हमारे पास को पता चला आ रहा है, हो रहा है. तो इसके लिए कुछ हमें ऐसी रेमेडी बताएं कि काइंडली ऐसे लोग जो है ना, जो हमारा क्राइम रेट जो बढ़ रहा है उसको किसी तरह से कम किया जा सकता है. तो आई थिंक ये जो कुछ आपने सॉल्यूशंस दिए हैं, इनमें अच्छी बात ये है कि किसी ने ये नहीं कहा कि ये जानने के बावजूद कि शायद कानून क्लाइंट के फेवर में ना हो, हमें फिर भी केस कोर्ट के सामने लेके जाना चाहिए, और वो जो इश्यूज हो, वो जो कवानीन हो जो शायद क्लाइंट के अगेंस्ट जाते हैं, वो हम किसी तरह कोशिश करें कि वो जज के सामने हम ना लाएं, उनकी प्रॉपर असिस्टेंस ना करें. तो ये आई एम वेरी ग्लैड कि दिस ऑप्शन वाज नॉट पुट फॉरवर्ड बिकॉज दैट इज नॉट प्रॉपर, बट अनफॉर्चुनेटली वी नो दैट इन सम केसेस
क्योंकि एज लॉयर्स हमारी एक कोशिश होती है कि हमें ब्रीफ्स मिलें, ऑब्वियसली हमारी ऐसी एक कोशिश होती है कि हमें फीस भी मिले। तो कभी इंसेंटिव होता है कि आप किसी न किसी तरह फाइल करें, जिसको हम कभी कभार कहते हैं फ्रिवुलस लिटिगेशन या वेक्सेशियस लिटिगेशन, और उसको फाइल करें और फिर कोशिश करें कि अगर चलता है तो चलाने दें, अगर नहीं चलता है तो ठीक है, थोड़ी बहुत फीस तो हमें मिल जाएगी। मैं समझती हूँ कि ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं प्रोफेशन में, लेकिन आपकी एथिकल ड्यूटी ये है इस सिनेरियो में कि आप क्लाइंट को समझाएं कि उनका केस कितना स्ट्रॉन्ग है। देखिए, कुछ केसेस में हमारा लॉ क्लियर कट होता है, कुछ केसेस में वाकई हमारा लॉ शायद बिल्कुल क्लियर कट ना हो, कुछ केसेस में ये होता है कि शायद मेरी रिसर्च और मेरे नज़रिए के मुताबिक आपका केस स्ट्रॉन्ग ना हो सकता है कि किसी और वकील के नज़रिए के मुताबिक या उसकी नॉलेज के मुताबिक उसका केस स्ट्रॉन्ग हो। तो मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि मैं क्लाइंट को तो ये समझाऊं कि देखिए, मेरे नज़दीक आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है जहाँ तक मैं कानून को समझती हूँ। आप उनको, अगर आपको कुछ एस्टिमेट है कि आपके चांसेस बहुत कम है या चांसेस शायद थोड़े ज़्यादा हैं, आप उनको ये भी समझा दें। और अगर लेट्स से कि आपको लगे कि जो आपका जो केस है वो बिल्कुल हो सकता है not 100% strong, but in some cases it's a grey area, और आपको लगे कि आप इस केस को फाइल कर सकते हैं without it being considered a totally frivolous or vexatious litigation, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप कोर्ट के सामने पूरी ड्यू डिलिजेंस के साथ ये केस सामने लेकर आएँ। लेकिन ये भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई आपके जो अगर कोई प्रेसिडेंट या कोई केस लॉ जो शायद आपके फेवर में कम्प्लीटली ना हो, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप कोर्ट को उससे आगाह करें। और मैं समझती हूँ कि क्योंकि हमारी एडवर्सरियल लिटिगेशन है तो ऑब्वियसली सम वकील टेम्पटेशन होती है कि हम उस केस लॉ को दबाएं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सिर्फ एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक में नहीं, बल्कि एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक भी, अगर दूसरी साइड वो कानून प्रेजेंट करे जो शायद आपको इतनी मदद ना करती हो, तो फिर जज का इम्प्रेशन क्या होगा आपके बारे में। सो आई थिंक इट्स बेस्ट फॉर यू ethically and also for your standing and reputation among the bar and before the bench, that you put forward all the law, including the case law, as honestly as possible, and within all of that try and put forward your case. So accuracy and proper representation before the judge is obviously crucial. अच्छा, इससे लिंक्ड भी है कि अगर यहाँ पर कुछ लॉयर्स हैं जो क्रिमिनल प्रैक्टिस परस्यू करना चाहेंगे और प्रोसिक्यूशन में जाना चाहेंगे, वेदर एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, हो सकता है कि कुछ केसेस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स भी अपॉइंट हों, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इट इज़ इन स्टेटेड क्लियरली in the ethics that your primary duty even as a prosecutor is not to convict, because your primary duty is to put forward, understand, put forward, unearth the actual facts of the case before the judge. और even as a prosecutor, अगर आपको ये लगे कि जो सारे facts हैं, जो evidence हैं, वो accused को काफ़ी नहीं है accused को convict करने के लिए, तो आपकी ये duty है कि आप court को ये बात सही से बताएं, और जो आपकी जो एविडेंस है और जो विटनेसेस हैं उनको आप इस तरह प्रेजेंट करें जितना ऑब्जेक्टिवली हो सकता है. सो योर ड्यूटी इवन एज अ प्रोसिक्यूटर इज नॉट टू कन्विक्ट. अच्छा, इसमें ये भी एज फार एज योर रिलेशनशिप टू द बेंच इज कंसर्न, ये भी एक ज़रूरी प्रिंसिपल है कि एक जजेस से एक रिस्पेक्टफुल फासला भी रखने की ज़रूरत है in terms of personal relationships. So one canon of conduct says that marked attention and unusual hospitality on the part of an advocate to a judge or judicial officer is not called for by the personal relations of the parties.
and an advocate should not communicate or argue privately with the judge as to the merits of a pending case. So आप कभी ये improper होगा कि जो दूसरी साइड के एडवोकेट की गैर हाजिरी में हम कोशिश करें कि हम जज से किसी भी हमारा जो केस उनके सामने है उसके बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये ज़रूरी है कि जज की इम्पार्शियलिटी बरकरार रहे और हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए इन दिस रिस्पेक्ट। अब ये एक आई थिंक आजकल जो मीडिया और सोशल मीडिया के जो दौर में ये बहुत अहम कंसिडरेशन है कि क्योंकि अभी हमारे जो केसेस हैं, कुछ केसेस होते हैं जो मीडिया में बहुत कवर होते हैं। हाल ही में एक जो केस है जो हर जगह मीडिया सोशल मीडिया पे बहुत कवर हुआ था, वो नूर मुकद्दम का जो मर्डर ट्रायल था। इसके अलावा जो प्रोसीडिंग्स हुई थी जस्टिस काजी फाइजा के, वो भी बहुत कवर हुआ था, डिटेल में कवर हुआ था। और ऐसे कई केसेस हैं जो मीडिया के सामने आते हैं। अब और हम देखते हैं कि इन केसेस में कई दफ़ा जो मीडिया है वो लॉयर्स को दरख्वास्त करती है कि वो आके इस पर कॉमेंट्री दें। तो मैं जनरली आपकी राय लेना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई केस चल रहा हो और लॉयर उसमें इंगेज हो किसी पार्टी के लिए, तो क्या ये मुनासिब है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस वो वकील मीडिया को एड्रेस करे? और अगर ये मुनासिब है तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक एड्रेस करना चाहिए? एनी थॉट्स ऑन दैट? नहीं करना चाहिए। जी, आपको क्यों लगता है, क्यों नहीं करना? इसलिए कि जो केस पेंडिंग में है और जो केस पेंडिंग में और कोर्ट में चल रहा है उसको कहीं दूसरी जगह पर बैठकर उसके ऊपर बात करना, यानी कि ये केस को ख़राब करने वाली भी बात होती है। और दूसरा ये कि और इस तरह जो है एक वकील का खुद का भी इमेज खराब होता है। कोई और राय के बारे में? इस हवाले से मेरी राय है कि हम बहुत सी चीज़ों के बारे में रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी में लगाते हैं, चाहे मीडिया के हवाले से, चाहे लॉ के हवाले से। कोई केस भी अगर कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग हो रही है तो आप उसको डिस्कस नहीं कर सकते। मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि कोई भी केस चल रहा है, हमें अपने लॉ सिस्टम पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो इतना ट्रांसपेरेंट है कि उसको डिस्कस करने से या कहीं भी डिस्कस जब तक नहीं करेंगे तो चीज़ें और फैक्ट्स कैसे सामने आएंगी, आप कैसे लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि इन केसेस में क्या हो रहा है। बंद कमरों के अंदर या कोर्ट के अंदर आम आदमी तक भी तो हमने वो अवेयरनेस देनी है। तो मैं समझता हूँ आपका लॉ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप जहाँ भी डिस्कस कर लें उससे उस केस की ट्रांसपेरेंसी और जज के ऊपर कोई उसका असर नहीं होना चाहिए। ये तो जज की अपनी कमिटमेंट होती है और एक वकील की अपनी कमिटमेंट होती है कि विद इन कोर्ट आपने किस तरह रोल प्ले करना है उसको डिस्कस करते हैं। तो आपको मैं नहीं समझता कि ये गलत चीज़ है। आई थिंक ये कम्युनिकेशन प्रिविलेज होनी चाहिए और पब्लिक में इसको डिस्कस तब तक ना किया जाए जब तक उसकी फाइनल डिसीजन आ जाए। बिकॉज हमारी पब्लिक जो है उस चीज़ को जो वहाँ पर हमारे वकील साहब जिस पार्टी के भी होंगे वो डिस्कस करेंगे, वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो उसके केस के होंगे, ना कि अदर साइड के। तो अगर उसमें फाइनली जब वो डिस्कस हो रहा होगा और फाइनल उसके अगेंस्ट कोई फैसला जाएगा तो हमारी पब्लिक में जुडिशरी के लिए खास करके एक गलत इंप्रेशन रहता है। थैंक यू। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका क्लाइंट होता है वो आप पे बहुत ट्रस्ट करके आपको बहुत सी चीज़ें बता रहा होता है। सीक्रेसीज की जो होती है वो आपसे एक फैमिली मेम्बर की तरफ डिस्कशन कर रहा होता है, जो शायद वो अपने फैमिली मेम्बर से नहीं करता।
तो अगर मीडिया पे ये सब कुछ बैठ जाता है, उसका ला उसको डिस्कशन करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिक्रेसी जो है वो डिस्टर्ब होती है, और सेकेंडली क्लाइंट का जो आपके ऊपर ट्रस्ट होता है सर, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। थर्ड, जब मीडिया में डिस्कशन चल रही होती है ना, तो वो डिस्कशन क्या करते हैं, फाइंडिंग को छोड़कर और सबमिशन और डिसीजन की तरफ चली जाती है। तो डिसीजन तो कोर्ट में बैठे ऑनरेबल जजेस ने देना होता है, वो फाइंडिंग भी रह जाती है, सब कुछ रह के डिसीजन पे आ जाता है। तो अगर डिसीजन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर उसके बाद वो केस के सारी जो सूरत हाल होगी वो ख़राब हो जाती है। तो आई थिंक कि इसको मीडिया पे डिस्कस करें, बट उस वक्त करें जब ये फाइनल डिसाइड हो जाए कोर्ट के अंदर। फिर उसमें जो एम्बिग्यूटी हुई है या उसके अंदर जो भी चीज़ें कम लगी या जो कोई भी मामला हो, आप उसको उस वक्त डिस्कस कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल किसी भी आई थिंक एडवोकेट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो इसको जो है मीडिया पे हाईलाइट करके, और मीडिया को भी इस चीज़ को रिस्ट्रेन करना चाहिए कि मीडिया ऐसे केसेस जो कि पेंडेंसी में है उनको डिस्कशन ना करें। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। ये बहुत ही आई थिंक टॉपिक्स आजकल जो देखिए माहौल जो है ना, वकालत तो हम करते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा वकालत करता है मीडिया। तो अगर इनको मीडिया को कम अज़ कम थोड़ा सा डिस्कस किया जाए कि हर केस में अपनी राय पहले से ना बना दे, तो जज टीवी पे देखे तो वो समझेंगे वो मजलूम है, ये जालिम है। तो ये जब तक डिस्कशन नहीं होगी कि कौन हक पे है कौन ना हक पे, तो मैं समझता हूँ कि जो 128वां नंबर हमारा आ गया है मतलब जुडिशरी का, इस पाकिस्तान का, तो ये हमारे लिए बड़ा बायस शर्म है। हमें बड़ी तकलीफ पहुँचती है कि हमारे बाप दादा जब थे आज से 50 साल पहले जो कोर्ट में केसेस की फाइंडिंग आती थी वो इस तरह की नहीं होती थी। अब जो फाइंडिंग आती है उससे लोग बड़े मायूस हैं कि हमारे मुल्क में इंसाफ बहुत मुश्किल है मिलना किसी भी आम आदमी को। आई थिंक कि जो ओपिनियंस थे they were very well thought out। अब जो हमारे जो कैनन्स कहते हैं वो मैं पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी राय अपनी जगह, लेकिन हमें कैनन्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तो इसमें ये कहा गया है कि पब्लिकेशंस इन न्यूज़पेपर बाय एन एडवोकेट as to pending or anticipated litigation may interfere with the fair trial in the courts and otherwise prejudice the due administration of justice. Generally, they are to be condemned. If the extreme circumstances of a particular case justify a statement or reference to the facts should not reach the public, it is unprofessional to make them anonymously. An ex parte reference to the facts should not go beyond quotation from the records and papers on file in the court, but even in extreme cases, it is better to avoid any ex parte statement. तो इसमें भी ये कहा गया है कि generally publication in the newspaper, और इसमें शायद ये मैसेज ना किया होगा कि आपको टीवी और सोशल मीडिया पे भी पेंडिंग केसेस की डिस्कशन होती है, तो एक एडवोकेट को जनरली स्पीकिंग इन पेंडिंग केसेस पे नहीं कमेंट करना चाहिए। और जिस तरह ये कैनन लिखा गया उसमें सिर्फ वो एडवोकेट्स जो उस केस में अपेयर हो रहे हैं वहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि जनरली एडवोकेट्स शुड रिफ्रेन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। एंड आई थिंक इसमें एक जो बहुत अहम कंसिडरेशन है वो ऑब्वियसली यही है कि अगर पब्लिक को एक इम्प्रेशन पड़ गया कि ये केस इस तरह की नौयत का है या ये केस ओपन एंड शट केस है, अगर उनको एक इम्प्रेशन मिल गया ड्यू टू द रिपोर्टिंग, तो उनको शायद ये लगे कि जो फैसला है वो नाजायज़ फैसला है, क्योंकि उनको तो सारी प्रोसीडिंग्स और दोनों साइड्स के जो आर्गूमेंट्स थे और एविडेंस थे उनको तो पूरी तस्वीर उनके सामने नहीं पेश की गई। और इस वजह से जो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ये हो सकता है कि उस पर जो एतमाद है उसकी वजह से कम हो जाए, अगर उनको सिर्फ एक वन साइडेड पिक्चर मिले एक ट्रायल की। तो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है। लेकिन हम ऑब्वियसली देखते हैं कि आजकल के दौर में कई पेंडिंग केसेस हैं जिसमें वकील अपनी राय और अपने इम्प्रेशंस देते हैं। कुछ हद तक मैं समझती हूँ कि ये ज़रूरी है कि हमारी पब्लिक डिस्कशन और पब्लिक डिबेट हो, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में हैं और यहाँ पर जो हमारे जो कोर्ट प्रोसीजर्स हैं और जो हमारे कवानीन हैं
वो पब्लिक को भी हक है कि वो उन पे अपनी राय दे, और अगर उनको ये लगे कि फेयर ट्रायल्स नहीं हो रहे तो उनको भी हक है कि वो इसके बारे में उनको मालूमात हो और वो इसके बारे में कमेंट करें. So to some extent I understand, but I think that it has to be weighed very carefully. And if as a lawyer we are publicly presenting views on a case or even narrating what is happening in a particular case, it is our duty that we represent the facts fairly. And I particularly think that if you are an advocate in a particular case while the case is pending, I think generally उस केस के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए, और ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि judges are at the end of the day human. We expect them to be impartial, but we cannot expect them to be superhuman, that they will have, the public opinion will have no impact on them whatsoever. Or if the lawyer for one party is publicly making a statement that a trial is not proceeding fairly, a judge who is sitting on the trial will not be impacted by such a statement, might even give rise to some unconscious bias on the judge's part. So taking all of that into consideration, I think public statements should be made with an abundance of caution. And of course, I think lastly, with respect to the duties to the court, I think these are the general principles, but I think another important one to remember. And so इसका ये कहने का मतलब है कि अगर हम जर्नलिस्ट रिक्वेस्ट कर रहे होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि कई तो अगर ये हो सकता है तो फिर आप कोशिश करें कि आप किसी जूनियर को ट्रेन करें कि वो अपेयर करें और केस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये भी एक एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए that I'm busy before the court, or I cannot appear in the city court because every day I'm in the high court. These excuses should also be avoided. और कुछ इसमें प्रेसिडेंट्स हैं कि कुछ वकीलों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है अगर उन्होंने बार-बार एडजर्नमेंट मांगी हो. So I think we can the section on duty to the courts is done. I don't know how done in time. We can take questions and then take a break. ठीक है सर, ठीक है. So questions? Yes, ma'am. Ma'am, my question is that shouldn't there be any legal rules or ethical guidelines that bound with media that could create a prejudice on our cases? कुछ ऐसी guidelines for मतलब media कभी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आ जाती है, कोई ऐसी पब्लिकेशन उनकी रिलीज हो जाती है जो कि सीरियस अंडरमाइन करती है हमारे केसेस को, या फिर कोई ऐसा प्रीजुडिस क्रिएट कर सकती है, तो पेपर जो कि रिलेवेंट अथॉरिटी है, क्या उन्होंने कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट किए हैं जो कि उनको मीडिया पर्सन को बाउंड करें इस किस्म की कोई प्रीजुडिस क्रिएट करने से? थैंक यू सो मच. I'll just answer this and we can take more questions. I think इसमें obviously यहाँ पर तो हम focus कर रहे हैं on the ethical obligations of lawyers, not so much on the media. तो जहाँ पर तक lawyers की obligations हैं तो obviously we discuss those कि अगर आप media को address कर रहे हैं तो आपकी duty है कि आप एक fair और unbiased और complete picture सामने लाएं. I think media की भी ज़रूर responsibilities हैं. Media also has certain ethical conducts to follow. जहाँ तक laying down PEMRA rules is concerned, I think we have to be cautious with that because we also have to respect the freedom, media's freedom to report fully and completely, but obviously the ethical obligation on them to report accurately is certainly there. And in general, we hear of this legal principle laid down
subjudiced matters हैं उनके बारे में comment करना मीडिया को या वकील को subjudiced matters के बारे में नहीं करना चाहिए. But to be honest, we know कि subjudiced matters are commented on a very regular basis and covered also on a regular basis. So इस respect में भी I think कोई clear guidelines नहीं है कि कब एक matter to what extent are ongoing proceedings meant to be completely beyond media and public scrutiny. So I think we also need clarity on the law and other legal frameworks. Other questions? We have a question here. मैडम मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना है कि हम फैक्ट्स पे तो बात कर सकते हैं क्योंकि हम मेरिट पे डिस्कस नहीं कर सकते. ये फैक्ट्स पर बात करने से ये होता है कि अवेयरनेस आती है, लोगों में पता चलता है कि कोर्ट्स क्या कर रही हैं, कोर्ट्स में जो मामलात हैं वो किस तरह के हैं और उनकी या कोर्ट्स की जो ऑब्जर्वेशन है मेरे ख्याल से वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं. अलबत्ता जो सबजुडिस मैटर है उसके मेरिट पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, डीमेरिट्स या मेरिट्स जो हैं हम. लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये एक विद लिमिटेशन जो है, जो बाउंड्रीज हैं उनमें अगर रहते हुए हम डिस्कस करें, जो ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं स्पेशली उनके लिए, तो ये तो बहुत अच्छा होगा ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी. लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी को किसी भी किस्म की सिविल लॉज के बारे में बताया ही नहीं जाता. उसके लिए बाकायदा सिविल लोगों की एजुकेशन होती है, उनको पता चलता है कि हमारे कौन कौन से राइट हैं और उनके लिए हमारे लिए कौन कौन से फोरम अवेलेबल हैं. मेरे ख्याल से डिस्कस करना मीडिया पे कुछ मेरे ख्याल से उसके ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट ज़्यादा आते हैं और उससे लोगों में अवेयरनेस भी पैदा होती है, लोगों को पता भी चलता है कि कोर्टों में इंसाफ हो रहा है. तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है कि अगर डिस्कस करें लेकिन विद इन द बाउंड्रीज करें. थैंक यू. इससे आई थिंक कि आपने जो दो, जिसको मैं कहूँगी कि टू कंपीटिंग कंसिडरेशंस आपने बहुत अच्छी तरह बयान की हैं कि ऑब्वियसली पब्लिक आल्सो हैज़ अ राइट टू नो एंड मीडिया हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू रेज पब्लिक अवेयरनेस. फैक्ट्स आई थिंक जहाँ तक आई थिंक योर राइट के फैक्ट्स और मेरिट्स तो अलग चीज़ होती हैं. जरूरी नहीं कि एडवोकेट अपना ओपिनियन दे के जज को इसी तरह ऑर्डर करना चाहिए, दैट वुड बी क्लियरली इम्प्रॉपर. लेकिन फैक्ट्स की भी एक ये कॉम्प्लिकेशन होती है और हम देखते हैं कि जिस तरह जो कुछ मर्डर ट्रायल्स जिस तरह कवर किए जा रहे हैं कि फैक्ट्स एक चीज़ होती है और कोर्ट में जो एडमिसिबल फैक्ट्स होते हैं, जो एडमिसिबल एविडेंस होता है वो एक और चीज़ होती है. तो कभी कभी पब्लिक में एक इम्प्रेशन ये आता है कि क्योंकि उनको जो फैक्ट्स बताए गए हैं उनको ये लगता है कि जिस तरह वो उन फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं कोर्ट भी उसी तरह एनालाइज करेगा, क्योंकि उनको कानूनी शहादत का नहीं पता, उनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नहीं पता. और मीडिया तो केसेस मुझे लगता है ऐसे कवर करती है जैसे कानूनी शहादत और CRPC जैसी कोई चीज़ है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली. और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली वकील भी जब केसेस के बारे में अपने कमेंट ही दे रहे होते हैं तो वो भी इस डिस्टिंक्शन को नहीं बताते कि फैक्ट्स तो एक होंगे, जो मीडिया फैक्ट्स रिपोर्ट कर रही है वो एक चीज़ है, लेकिन जो एडमिसिबल फैक्ट्स हैं, जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, जो जज जिन फैक्ट्स को कंसिडर कर सकता है वो तो कानून के हिसाब से ही होगा. सो आई थिंक दैट्स एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, लेकिन उसमें भी आई थिंक थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है. अस्सलाम वालेकुम मैम. मेरा क्वेश्चन जो है वो क्लाइंट और एडवोकेट के रिलेशन के भी दरमियान है. अगर कोई क्लाइंट के पास ऐसा केस आ रहा है जिसमें हमें पता है कि इसके खिलाफ जो डिसीजन होगा वो इसके खिलाफ आएगा या कन्विक्शन होगी, कोई ऐसा केस आ गया, तो क्या हम उसको वो चीज़ बता सकते हैं? अगर बताएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हवाले से वो क्या होगी?
नेक्स्ट सेशन में ड्यूटी टू क्लाइंट्स का जो हिस्सा है वो हम डिस्कस करेंगे, तो वो आएगा। लेकिन टू द एक्सटेंट कि जहाँ तक हमने अभी कुछ ही इसके ऊपर हमने कुछ डिस्कशन किया था कि जहाँ तक आपका कोर्ट के रिस्पेक्ट टू ड्यूटी टू द कोर्ट, अगर ऐसा हो कि आपको इस केस का जो आपको लगे कि उसमें आपकी क्लाइंट को सक्सीड करने के कम चांसेस हैं, अगर आप फिर भी फॉर व्हाटएवर रीजन कोर्ट के सामने लेकर जाएं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो सारे फैक्ट्स हैं और जो कानून जहाँ तक आप समझते हैं वो कोर्ट के सामने पेश करें, और फिर ऑब्वियसली कोर्ट फैसला तो कोर्ट ही करेगी। लेकिन हम ड्यूटी टू द क्लाइंट के बारे में थोड़ी सी और तफसील में जाएंगे। थैंक यू मैम। हम अगर एक क्वेश्चन पे प्लेस करें, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई थिंक हम अपना केस अगर जज के सामने पेश कर रहे हैं, ठीक है, कोई अगर पॉइंट्स मेरी तरफ से रह भी गए, लेकिन जज की भी तो पूरी ड्यूटी है ना कि वो जिस सीट के ऊपर बैठा है उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और वो जो है जो भी ऑर्डर करे और जजमेंट करे तो वो ये नहीं देखे कि जज वकील ने ये केस लॉ नहीं दिया था या ये चीज़ नहीं कही थी, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी देते हुए उसके नॉलेज में वो तमाम केस लॉज भी होने चाहिए, वो साइटेशन भी होनी चाहिए, और उसको वो नॉलेज भी होनी चाहिए, उस पर डिपेंड कर वो ऑर्डर करे। ये जजेस की भी ड्यूटीज़ में है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी आया है कि जो जज सीट के ऊपर बैठा हुआ है उसे लॉ की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि वकील सारी साइटेशन उन्हें दे, अगर नहीं भी दे सका तो लेकिन उसके भी इल्म में होना चाहिए और वो जो है उसे कंसिडर करे। देखिए, आई थिंक कि ये जो बार और बेंच की जो ड्यूटी है वो आई थिंक एक म्यूचुअल ड्यूटी है। तो देखिए, ये मुमकिन हमारा एज लॉयर्स आवर ड्यूटी इज टू असिस्ट द कोर्ट टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी विद ऑल द फैक्ट्स। अब ये मुमकिन नहीं है, देखिए, अगर जज को सारा कानून पता होता और अगर उनको असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती तो हम लोग की ज़रूरत, लॉयर्स की ज़रूरत क्या होती? We are there to assist the court, और ये expect obviously a judge should be aware and up to date about the law, but जो हमारे facts हमारे केस से जो relevant है उसकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी उसके ऊपर रिसर्च करें। और इस नज़रिए से हमारी फिर ये जिम्मेदारी है कि अगर हमें लगे कि जो कंप्लीट इस पे जो प्रेसिडेंट्स हैं उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे अगर आप एक पॉइंट पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर आप डिपेंडेंट की तरफ से हैं और आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि प्लेंटिफ ने इस कोर्ट की कोई जुरिसडिक्शन नहीं है इस केस को समझने, ठीक है, तो उसमें आपने जो सारा केस लॉ है रेलेवेंट टू जुरिसडिक्शन, यू हैव टू प्रेजेंट दैट। If there is some case law which you think might not be going in favor of your argument, आप वो प्रेजेंट करें, लेकिन फिर आप उसको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करें, ठीक है? Okay, I think tea break for 10 minutes और चाय बाहर सर्व करेंगे। अच्छा, यही सर्व हो रही है चाय, ठीक है, then we resume in 10 minutes. ये 5 मिनट का एक वक्फा, टी ब्रेक, thereafter our lecture will be continued. यानी कि बंद तो कर सकते हैं कि लाइव चल रही है, थोड़ा इसको सब पॉज नहीं चल रहा होगा, पहचान नहीं रहा है, नहीं लोगों पे बंद नहीं, यहाँ पे सिंध को बाहर के लोगों पे जुम्मे सारे आगे डिस्टर्ब किसी ऐसी नहीं है।
सीधे आप सीधे
टी ब्रेक के बाद हमारा सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने बैठे हुए मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि हमारा नाम नहीं लिखा गया, रजिस्ट्रेशन नहीं हो चुकी है, सिग्नेचर्स नहीं किए। उन तमाम दोस्तों के लिए जिनको स्टिल फॉर्म जिन्होंने नहीं लिए हैं, लीगल एजुकेशन कोर्स के मेरे हाथ में फॉर्म है, आप काइंडली रेज अप योर हैंड्स एंड कलेक्ट द फॉर्म। मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, ये फॉर्म ले लीजिएगा, फिल करके अभी आपके हाथ में वापस कीजिएगा ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो सके। और वो जो लिंक भी है, अपना नंबर लिखिएगा, उस पर हम लिंक भेज देंगे। आप लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं और जो हमारा मटेरियल है वो भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।
If everyone could be seated, Ms. Sara Malkani will now be resuming the session and she'll be shedding light on the duties towards other advocates. Ready to start paying some attention again. Acha. What I do is I will start by going over duties to clients. I think जो पिछली session के कुछ जो सवाल थे towards the end, I think they were touching on that. So I'll start with duties to clients and then hopefully we'll have time to move on to duties to other advocates, because I think that's also very important in light of even the conversations that we were having just during the break. So, I think your foremost duty, obviously, to your client is to represent them with all full due diligence. If you are taking on a brief of a client, you owe it to them to put in as much work in it as possible and to present their case in the best manner possible, obviously keeping in regard all your other ethical duties. In light of that, I think one of the key principles is to avoid any conflict of interest. So this is a canon, which is section 145 of the canon of conduct, and it explicitly states that an advocate shall not acquire an interest adverse to a client in the property or interest involved in the case. And moving on, 146 says that an advocate shall not accept employment adverse to a client or former client relating to a matter in reference to which he has obtained confidential information by reason of or in the course of his employment by such client or former client, provided that an advocate who has not been formally engaged by a person and accepted a retainer nor received any fees for such engagement is not precluded from accepting employment adverse to the interests of such person. And then it also states in 148 that an advocate shall not represent conflicting interests. तो इसका ये मतलब है कि obviously अगर आप आपके सामने एक brief आता है and you are engaging a client and a client has engaged you in a particular matter, and in the course of that there is certain important information that you have acquired about their matter. अब अगर उनका केस कंक्लूड हो जाता है और अगर दूसरी साइड फिर आपके सामने आती है और एक कनेक्टेड मैटर होता है और वो आपको कहती है कि आप परस्यू करें, then it would be, and the party involved is your previous client, it would be improper for you to take on that case. For example, if I am representing a party in a matter relating to maintenance, so it's a family law matter relating to maintenance, a mother has come to me and the marriage has recently been dissolved and she wants to pursue maintenance for her children in court, and I represent her in the matter. The matter concludes. If the father then comes to me and says, I want you to file a case for custody of these same children, would it be proper for me to take on that case? And it would not be proper to take on that case. Why? Because obviously during the course of representing the mother in that case, who would be the adverse party,
there must have been a great deal of information that I got, much of it confidential, and even if I can potentially use that information in the other case, even if I don't actually use it, but even if I could potentially use that information in the case, I should not be able to do so. So that brief I must decline. Asha. Similarly, an advocate shall not acquire an interest adverse to a client in the property or interest involved in the case. So, let's say, for example, you are representing somebody in a suit against a particular company, against a particular corporation, and they're claiming that that entity is liable for certain damages to them on account of a particular cause of action. After taking on that case, can you then go ahead and become a partner in that enterprise? Or if it's a company, can you become a shareholder in that enterprise? No, it would be improper for you to do so. The reason for that is that obviously now your interests are impacted. Your ability to properly represent your client who is seeking damages from that entity are impacted by the fact that you now have a stake in that particular company. So you, or that entity. So you cannot acquire any interest that would be adverse to your client. इसमें ये कहा है that there is an exception here that let's say if you have acquired some information, you have advised a particular client, but you have not been formally engaged by them, can you then go ahead and accept a brief from an adverse party? And here it is saying that you are not precluded from doing so, but I would say that in the interest of being fully and completely ethical, if somebody has come to you and asked you to give advice or consulted with you on a particular matter, but then उनका फैसला है कि वो आपको रिटेन नहीं करेंगे, हो सकता है कि उस कंसल्टेशन में उन्होंने आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दी हो और ये मुनासिब फिर नहीं होगा कि आप उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें अगर एडवर्स पार्टी फिर आपको अप्रोच करे. तो आई थिंक कि इन सिचुएशंस में भी कुछ आपको अपना जो आपको ज़मीर के मुताबिक जो आपको appropriate लगे, even if you have not been properly engaged, I think there are certain circumstances in which you should say that I will not advise you because I have advised the other side. And in certain cases, for example, I have done that because I felt uncomfortable. I felt that I cannot advise the person properly without conveying to them information that was given to me in confidence by somebody else who came to me for a consultation but maybe decided not to retain me. So I think that is important to take into consideration. Okay. And I think related to that, we can also talk about to what extent, what is the nature of advice that we can give to a client. अब ये हमारी एक जिम्मेदारी है, जैसे मैंने कहा कि हमें एडवाइस देना चाहिए to the client to the best of our knowledge, to the best of our ability, but we are not permitted to advise a client at any point to take any action that could be in violation of the law. So that is a very fundamental responsibility on our part. और अगर आपको क्लाइंट अगर एडवाइस आपसे ले, कंसल्ट आपसे करे और उसके दौरान वो कुछ सजेस्ट करे कि मैं एक इलीगल काम में एक काम एक्शन ले सकता हूँ जो इलीगल हो, should I do it? It is your duty to advise against that person. And the client की कोई एक्सपेक्टेशन ये नहीं हो सकती है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसके जो इलीगल काम है उसमें आप उनको, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सपोर्ट करें, या क्योंकि वो आपका क्लाइंट है आपके ये जिम्मेदारी है कि आप उसके इलीगल काम जो आप जानते हैं कि उन्होंने किए हों, जो वो आपको बताते हैं कि आपने किए हों, कि आप उनको डिफेंड करें. Because it is ultimately your decision and it is not your responsibility to commit to a client that I will protect you even if you take any illegal actions. No, it is your responsibility to tell the client that you
that this particular action is contrary to the law, and therefore we would advise and caution against taking such an action. अब इसका ये भी मतलब है कि आप अपने जो पर्सनल ओपिनियंस हैं उसको भी आप थोड़ा फासले में रखें। लेकिन हो सकता है कि कुछ केसेस में मुझे लगे कि जो मेरे क्लाइंट हैं, I might not always think that my clients are the most ethical people. I might not always think that my clients are the most professional people to work with. But it is our responsibility as lawyers to be impartial even towards our clients. So we must keep our personal opinion to the side when we are representing the client. And if we feel that we cannot, and if we feel that we are biased and we're not capable of putting the best case forward, then I think it's our obligation to return the brief. तो अगर आप ये देखेंगे 153 में clearly ये कहा गया है that it is the right of an advocate to undertake the defense of a person accused of crime regardless of his personal opinion as distinguished from knowledge as to the guilt of the accused. Otherwise, innocent persons and victims merely of suspicious circumstances might be denied proper defense. Having undertaken such defense, an advocate is bound by all fair and honorable means to present every defense that the law of the land permits, to the end that no person may be deprived of life or liberty except by process of law. और इसका ये भी मतलब है कि अगर हमें लगे कि कुछ लोग हैं जो in some cases, for example, who've committed heinous crimes or accused of committing heinous crimes rather, और अगर मेरा ये opinion हो कि मैं इनको represent नहीं करूँ, जैसे generally so far in my practice it's not a hard and fast rule, but I have not in my practice taken up the representation of somebody who has been accused of rape or child sexual abuse. In those cases I have drawn the line, but that does not mean that any other lawyer who has taken on the case of that person I should assume that that lawyer is a bad person or that lawyer has violated any ethical code, because that lawyer has not violated any ethical code. It is the right of every person to have a proper defense. It is the right of every person to engage legal counsel in a trial. तो इसका ये मतलब है कि जो वकील उनको represent करें जिनके खिलाफ heinous accusations हैं या जिनके खिलाफ ये publicized भी हो गया है, हमने media trials की जिक्र किया कि media भी यही उछाल रहा है कि इन्होंने किया है, तो इसका ये नहीं मतलब कि हम as advocates or judges assume that advocate has violated any ethical obligation, because that is not a violation of ethical obligation. A lawyer who is representing somebody who has been accused, it is their responsibility to put forward the best defense, and we cannot stand in condemnation of some lawyer for doing the same. और इसमें जो हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात जो हमने रेज की, उसमें एक रिलेटेड इशू आता है, वो है क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी का. So I think it's very important to keep in mind that client confidentiality must be protected and respected at all costs. जो clients आपको कई ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपकी public pleadings में ना हो, but जो आपको client इजाज़त दे कि आप pleadings में डालें वो आप डालें, लेकिन जो बाकी information है, which any information that they have conveyed to you, whether verbally, over email or in text messages, that must remain confidential. और आई थिंक इस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैंने भी ओवर द ईयर्स सीखी है कि जब भी मैं कोई सबमिशन डालूँ कोर्ट में, क्योंकि वो उसकी कॉपी अदर साइड को ज़रूर जाएगी. जनरली स्पीकिंग हम जो कोर्ट सबमिशंस करते हैं वो अदर साइड को हम एक्स पार्टी सबमिशंस तो एज अ रूल नहीं कर सकते, मे बी देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट वी नो दैट द अदर साइड विल गेट इट. So as a rule, I always
ask my client, and I emphasize to my client, you must check everything that I am submitting. You must know that this will now be a public document. तो खास तौर में जो सेंसिटिव केसेस होते हैं, ये आपके लिए भी अच्छा है कि आप कॉन्फर्मेशन लें. आइडियली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक रिटन कॉन्फर्मेशन दूँ ओवर ईमेल कि जी ये बिल्कुल सही है, आप सबमिट कर लें और आप अदर साइड को भी कॉपी दे दें. अगर उनको कुछ चीज़ें लगती हैं कि नहीं ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मैं अभी इसको पब्लिक नहीं करना चाहती, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको एक्सेप्ट करें. कुछ अभी और ये कई दफ़ा मेरे साथ भी हुआ है कि कुछ केसेस है जिसमें मैंने कहा है कि देखिए ये आप कॉन्फिडेंशियल रख तो सकती हैं, लेकिन अगर आप इसको पब्लिक करेंगी तो हमारा केस ज़्यादा मजबूत होगा. पब्लिक इन द सेंस कि अगर आप इसको अपनी फीडिंग में डालेंगी तो हमारा केस ज़्यादा मजबूत होगा. लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, हम इस वक्त ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे. So we can advise the client that this might not be the best strategy to follow as far as your case is concerned, but ultimately we have an obligation to respect the client's confidentiality. It must be that. At the same time though, so keeping the confidentiality in mind, which is obviously very crucial, और ये भी ज़रूरी है कि क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम और लोगों के साथ भी, ऑब्वियसली हमारे चेम्बर्स में और भी वकील होते हैं और हमारे साथ जूनियर्स होते हैं, हमारे साथ कोर्ट क्लर्क्स भी होते हैं. तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जिसमें वेरी ऑनेस्टली शायद मुझको भी सही तरह से समझाया नहीं गया, सही तरह से ट्रेनिंग नहीं दी गई कि आपके सामने जो भी आए तो क्लाइंट ज़रूर शायद मेरा हो, लेकिन हर लेवल तक जो आपके जो कोर्ट क्लर्क्स हैं, जो आपके स्टाफ हैं, जो फोटोकॉपीज़ भी कर रहे हैं, उनको भी ये सही तरह समझाया जाए कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी आप पे भी अप्लाई करती है. तो आपके चेम्बर्स पे सबकी ये जिम्मेदारी है और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनको बताएं कि अगर यहाँ से कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होगी तो उसके आप जिम्मेदार होंगे. Obviously, anybody who's an enrolled advocate, they're required to keep it confidential, but any other person in staff must also, staff must also keep this information confidential. अब इसमें एक जो रिलेटेड आता है कि हमें अपने जो क्लाइंट्स की एक आपने शायद ही कई दफ़ा सुना होगा, मैंने कई दफ़ा जजेस से भी ये सुना है दैट यू आर एन एडवोकेट, यू आर नॉट अ पार्टी. सो आई थिंक ये भी ज़रूरी है इस चीज़ को जहन में रखना. दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी टू आवर क्लाइंट्स बट ऑल्सो द ड्यूटी टू द कोर्ट कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने क्लाइंट से कहें कि आप जो कुछ भी चाहेंगे कहना और जिस तरह आप कहना चाहेंगे उसी तरह हम कोर्ट में बयान करेंगे. नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है. अगर ऐसा होता तो फिर हमारी तो ज़रूरत नहीं होती, सीधा जो हमारी पार्टीज़ हैं वो जाके कोर्ट को एड्रेस करते. ये हमारी ज़रूरत नहीं, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है. और ये हमको क्लाइंट जो हम सर्विस जो क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन हमारे जो एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं वो अपनी जगह. और ऑब्वियसली जो कानून है that is there regardless of what the client says or not. So we are not obligated to do everything and anything that the client tells us to do. And this also means that when we are advocating before the court, we have to accept that our duty is not only to the client, our duty is also to the court, and our duty is also to the other advocate and to the other side. हमारा कोई personal dispute दूसरी पार्टी से नहीं है और दूसरे एडवोकेट से भी नहीं है. तो ऑब्वियसली इसका ये मतलब है कि हमें एक एहतराम जो हमने पहले डिस्कस किया कि कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं करनी, सही से कानून प्रेजेंट करना है. और फिर जो हमारा कोर्ट रूम में भी जो हमारा बिहेवियर है और जो लहजा है वो होना चाहिए एज समबडी हु इज representing a party and is for one side but beyond that is impartial and cannot have any personal problem with any decision that the judge makes or any personal problem with the other party. And related to that, it is also very important to keep in mind that as advocates, we are obligated to not consult directly with the adverse party. We must communicate with them through their lawyer
and if they are so represented, obviously if they choose to represent themselves तो हमारी सारी communications अगर वो अपने आप को pro se कर रहे हैं तो हमारी communications उन्हीं के साथ होंगी, लेकिन अगर वो किसी एडवोकेट उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारी सारी कम्युनिकेशन उनके एडवोकेट के साथ ही होगी. वी कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द एडवर्स पार्टी. एंड अगर आपके क्लाइंट कोई एडवर्स चीज़ें या बियॉन्ड the legal process, going beyond the legal process, they want to take some action against the adverse party, that is also something that we as lawyers cannot be involved with. और ये भी ज़रूरी है कि हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको रीज़नेबल, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम रीज़नेबल रखें. ठीक है. अब ये एक केस है जो एक रिपोर्टेड केस भी है जिसमें एक एडवोकेट ने गारंटी दी कि मैं बेल पे छुड़वा दूँगा और अपने क्लाइंट को और कहा कि आप मुझको एक बहुत ज़्यादा रकम दें और अगर नहीं हुआ तो मैं आपको पैसे वापस कर दूँगा. इट्स अ मनी बैक गारंटी. तो अब ये जो और उनको बेल नहीं मिली और फिर ये डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने ये जब मैटर रिपोर्ट किया गया तो फिर ये कंक्लूजन था कि इस किस्म की जो गारंटीज़ हैं वो वकील को नहीं देनी चाहिए. We can never give a 100% guarantee because that is not in our hands. So it is our duty not to misrepresent that to our clients. And not only does that give a bad impression about the legal system, but that's almost kind of manipulating people who don't know any better. तो हम कभी भी किसी को 100% गारंटी नहीं देनी चाहिए और उनको जहाँ तक हो सकता है एक बहुत ही ट्रू ऑब्जेक्टिव पिक्चर देनी चाहिए कि आपके चांसेस किस तरह हैं. आपके अगर अच्छे चांसेस हैं तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आगे तो जज ही डिसाइड करेगा. तो ऑब्वियसली हम सबको पता है क्लाइंट्स हमारे पास आके मुझे भी बार बार पूछते हैं कि हमारे फेवर में हो जाएगा ना, जज ये ऑर्डर कर लेगा. तो ऑब्वियसली मैं कहती हूँ कि फैसला तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जितनी हम मेहनत कर सकते हैं वो सिर्फ वही हमारे हाथ में है. अब the canons also have provisions about fixing fees, and I know that this is something that's a particularly for some lawyers particularly challenging, and I know it is for me to even know कि fees किस तरह fix करनी चाहिए. और कुछ clients होते हैं जो वाकई fees के मामले में बहुत difficult होते हैं, तो इन मामले में हमको क्या करना चाहिए. तो ये एक canon है कि in fixing fees advocates should avoid charges which overestimate their advice and services as well as those which undervalue them. So you have to have an honest assessment of what the service is and do not charge exorbitantly, but at the same time don't undervalue the services either. और इसमें ये भी कहा गया that the client's ability to pay cannot justify charge in excess of the value of the service, though his property may justify a lesser charge or even none at all. So in some cases, वाकई में अगर आपके पास clients आए, if they are, it is I think an ethical obligation for lawyers also, although it's not stated in the canon, that we assist people who cannot afford any legal representation. If possible, we can help them free of cost. We should. But इसमें ये कहा गया है कि आप overcharge फिर भी you should avoid overcharging. And I think I don't know to what extent this canon is followed in this day and age, but I think the point is that the idea behind it is that we should not see law as a business, as a money-making business only. It is a distinct profession in that it is also meant to serve the public. It is meant to do public good. तो हमें इस प्रोफेशन को इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि इसका मकसद यही है कि हम बहुत अमीर हो जाएं या हम बहुत पैसे बनाएं. और इसमें ये भी कहा गया है 155 canon number 155 में that controversies with clients concerning compensation are to be avoided by the advocate so far as shall be compatible with his self-respect and with his right to receive reasonable recompense for his service. Any lawsuits with clients should be resorted to only to prevent injustice, imposition or fraud. So I think this is really all to
maintain the dignity of the profession. I think overall, with respect to our duties towards clients, जो relevant canons हैं वो मैंने cover कर लिए हैं. I think we can have a quick Q&A before we move on to before we briefly have a discussion on duties with respect to other advocates. Ma'am, there's a couple of online questions here, so I'd just like to take them. Rehman Aman asks, could you also please, if possible, explain कि आपने बोला कि you should not overestimate or underestimate, लेकिन how do you correctly assess the price related to somebody's freedom? अगर आप अपने client को आज़ादी दिलवा रहे हैं, तो क्यों आप उसकी एक बहुत एक माकूल रकम ना चार्ज करें? ये सवाल पूछा जा रहा है. I don't know. It's a short answer to that question. I mean, you know, I think it's not very specific how this has been phrased. तो इसमें कोई आसानी से हम ऑब्जेक्टिवली एक मेट्रिक नहीं कर पाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा एस्टिमेट है, ये अंडर एस्टिमेट है. अब आप आई थिंक एक चीज़ हो सकती है कि आप अपने कॉलीग्स को से शायद टू द एक्सटेंट दैट यू कैन कम्युनिकेट विद देम कि आपकी जो लेवल है, आपकी जितनी साल की प्रैक्टिस है, आपका जितना एक्सपीरियंस है, उसके लिहाज से आपको क्या लगता है कि आप किस वैल्यू की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो एक ये फैक्टर है जो आप कंसिडर कर सकते हैं. आई थिंक दूसरा फैक्टर ये भी है कि आप क्लाइंट की जो एबिलिटी टू पे शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. इसमें ये कहा गया है दैट you should, if you consider that they're able to pay a great deal, that doesn't justify charging an exorbitant fees. But if you think that they have financial limitations, that can actually pay some consideration in taking the fees up. So I don't think that there is a formula, and I don't think that there can ever be a formula. But I think, you know, we can just maybe gauge based on what the value of the service that we provide is, and what the overall market rates are. Although I understand that market rates in this profession are very inconsistent. So एडवोकेट ज़ाहिर मिराल पूछते हैं कि क्लाइंट्स के दरमियान हम एडवोकेट्स में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है, in the sense that people who can afford to pay are given a very marquee service, whereas those who cannot afford to pay to that degree, their cases are generally given off to the junior associates, whereas the fees is being taken by the senior associates. So how do you deal with that particular problem? So I think देखिए, एक तो ये है कि no matter अगर आपने एक brief accept कर लिया हो, तो no matter कि उसकी कोई क्या फीस हो, या अगर client की फीस ना भी दे हो due to financial limitations, आपकी जो आप जिस डिलीजेंस से और जिस मेहनत से उस केस को परस्यू करें, उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए. क्योंकि आपकी जिम्मेदारी क्लाइंट की बुरी रहेगी अगर आपने ब्रीफ एक्सेप्ट कर लिया हो. तो आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि इस क्लाइंट ने ज़्यादा फीस दी है तो मैं इस पर ज़्यादा तवज्जो दूंगा, इसने कम दी है तो मैं कम दूंगा. जहाँ तक ये सवाल है कि देखिए, कुछ प्रैक्टिसेस में अगर सीनियर्स कुछ केसेस होते हैं जो वो अपने एक जूनियर्स को दें, और जनरली शायद वो केसेस हों जिसमें फीस हाई ना हो, तो वो अपने जूनियर्स को देते हैं. इसमें एक एडवांटेज होता है कि इस तरह से जो जूनियर्स हैं उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है. सो आई डोंट फ्राउन अपॉन दिस प्रैक्टिस as long as the junior understands and the senior makes the junior understand that you have to put your best into this work, and then the senior can supervise that case also to some extent. But I think that ultimately the idea should be that the quality of the service should not be compromised. All right, thank you. there's a question that कि सारी इखलाकियात वकीलों को पढ़ाई जाती हैं कि आपने इस तरीके से बाउंड होना है. जैसे एक क्लाइंट आता है, सारी चीज़ें डिस्क्लोज करता है कि हम बाउंड हैं, अदर साइड की हम वकालत नहीं कर सकते हैं. अगर एक साइड आके सारी चीज़ें हमें बताती हैं, इखलाकन हम दूसरे का वकील मुखालिफ पार्टी का नहीं बन सकते हैं एथिकली.
बट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वकील के पास आके वो फीस पे नहीं कर सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं होती, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी के मैटर्स होते हैं, उस प्रॉपर्टी में एक ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होती है। जब वकील केस लड़ता है उनके साथ एक एग्रीमेंट करता है, फीस के हवाले से कुछ परसेंटेज पे करता है, आफ्टर सक्सीडेड डेट केस, अब उस एडवोकेट साहब को केस जीतने के बाद अपनी फीस के लिए एक अलग से केस करना पड़ता है पार्टी के साथ, अक्सर प्रैक्टिस में। इसके लिए हमारा लीगल एथिक्स क्या कहता है? अच्छा, इसमें तो लीगल एथिक्स में कहा गया है that pursuing litigation against a client should be avoided. I think ये है कि अपने प्रोफेशन में to maintain the dignity of the profession, perhaps I think ये canon lay down किया गया है कि आपको ये avoid करना चाहिए। So I think but ये कोई hard and fast rule नहीं है। तो obviously in some cases में वाकई आपने केस पूरा किया हो और आपको क्लाइंट ने बिल्कुल फीस ना दी हो, तो ऑब्वियसली आपका हक है कि आप लीगल प्रोसेस के ज़रिए उसको परस्यू करें। If other means are possible, you should pursue those. If to some extent it's possible for you to go forgo that fees, then you can try. You should do that if it's possible. But if not, then the canons do allow you as a last resort to go and pursue litigation. कुछ cases में शायद ये बिल्कुल unavoidable हो जाता है। जी। मैम, मेरा सवाल ये कि we are on duty, we should not misrepresent the facts before the court. और हमारे पास क्लाइंट आता है जो कि हिंगेस क्राइम में इन्वॉल्व है और हमें उसे बचाने के लिए कुछ फैक्ट्स को अल्टर करना पड़ता है, तो what should we do in such a case? Should we alter the facts before the court? अगर करते हैं तो वो क्या होगा? You should never alter the facts before the court. Never alter the facts before the court. If there are some facts that are not in your favor, then don't present them. Now, obviously, that means that your case is not very strong, but that is something that you have to live with, and your client has to live with. देखिए, अगर आपको ऐसा लगे कि इस पर्टिकुलर केस में आपके क्लाइंट के फेवर में जो एविडेंस है वो बहुत कम एविडेंस है जो उनको सपोर्ट करता है, तो आपकी तो जिम्मेदारी है कि जो आपको वाकई लगे कि जो क्रेडिबल फैक्ट्स हैं, जो क्रेडिबल एविडेंस जो वाकई है, वो आप प्रेजेंट करें। अब अगर ये नहीं हो सकता कि सिर्फ अपने क्लाइंट की जीत के लिए या उनको छुपाने के लिए हम कोई फैक्ट्स ऑल्टर करें या फिर मिसरिप्रेजेंट करें, और इसके साथ साथ ये भी ड्यूटी है कि अगर अदर साइड हमें मालूम है कि कोई फैक्ट्स प्रेजेंट कर रही है जो कि सही फैक्ट्स हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ये ना कोर्ट को कहें कि ये झूठ बोल रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि इनकी शायद कि ये जो सबूत है इस स्टेटमेंट का उन्होंने सही प्रेजेंट नहीं किया, या हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जो वो एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं, हम अगर कोई क्लेम है कि ये एविडेंस इनएडमिसिबल है तो हम कोशिश करें कि वो रिकॉर्ड के बाहर आए। लेकिन अगर हमें मालूम है कि ये चीज़ सच है तो हम इसको डिनाई भी नहीं करना चाहिए। जी, My question is that you discuss the professional and ethical conduct and behavior of an advocate with the badges, media, and also clients. My simple question is that what should be a professional and ethical behavior of a senior advocate with his juniors regarding the compensation and behavior? Kindly focus on this point. How a senior advocate should compensate with his junior? Okay. So I think this brings us to the section in the canons which is on duties to other advocates. So I think अभी टाइम भी हमारे पास कितना टाइम 10 minutes है, ओके, so we can move on to that, ठीक है। तो हम इसी इशू से शुरू कर लेते हैं कि as with respect to our conduct to other advocates, so it's stated quite clearly in the canons
that junior members of the bar have to treat senior members of the bar with respect and obviously understand that their knowledge, their experience is superior to theirs. लेकिन इसमें ये भी लिखा गया है that the senior members of the bar should also treat the junior members of the bar with respect and with kindness. और in fact canon में ये भी कहा गया है कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो junior members of the bar को सही तरह से गाइड भी करें. तो इसमें है I think canon number 143 जिसमें लिखा गया है कि junior and younger members should always be respectful to senior and elder members, and the latter are expected to be not only courteous but also helpful to their junior and younger brethren at the bar. और इसमें ये भी कहा गया है कि कुछ केसेस में ये होता है कि एक पार्टी में या एक साइड जो होती है, let's say there are multiple defendants in a particular case, उसमें कई advocates engaged भी नहीं हो, तो जो senior member हैं उनको first right of audience देना चाहिए. The junior members should defer to the senior member unless the senior member allows the junior member to speak first. Then that's all right. But generally ये principle follow होना चाहिए कि senior members of the bar should be given precedence over as a right of audience over the junior members of the bar. With respect to other duties, ये हमें जो very basic एक principle है, ये है कि as advocates we have to uphold at all times the dignity and high standing of the profession. तो इसका ये मतलब है कि हमारी जो conduct है, जो behavior है, जो रवैया है, वो हमारे पूरे profession का एक reflection है. और अगर हमारा एक कोई misconduct हो तो उससे सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे profession पे असर होता है. So we have to, so our primary duty to the advocates and our primary duty to the bar is to conduct ourselves in a way that will uphold the dignity of the profession, not bring the profession down. And that means not only obviously in the courtroom, but even in our offices, even when we're out in the public at large, to keep in mind that we are also representing a profession, we're representing the bar. इसमें एक और चीज़ है जो I think again क्योंकि आजकल more and more I think lawyers feel the need to stand out, और I can understand क्योंकि competition भी बहुत ज़्यादा है and we obviously want to succeed professionally, but it is important to note that an advocate is not permitted under the canons to solicit professional employment or advertisement by any means. So we cannot advertise our services. In that sense, we are distinct from some professions. इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने नाम किसी directories में ना छपवाएं, या we're allowed to have business cards, we're allowed to have signs outside our offices which have to be of a certain size. We're allowed to do those things, but we cannot go around and advertise our services. So, any और अभी क्योंकि कई law firms और lawyers की websites भी हैं, तो उन websites में भी हमें ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादातर जितना factual है वो ही रखें, कि हमारी जो experience है वो इतना है, हमारी educational qualifications ये हैं, हमने इन cases में हिस्सा लिया है, लेकिन आप इस तरह अपने आप को advertise ना करें कि हम सबसे अच्छे वकील हैं, या हम गारंटी करते हैं कि हम आपको इन केसेस में जितवाएंगे, और हम जिस तरह हम प्रोडक्ट्स की जब देखते हैं कि जब एडवर्टाइजमेंट होती है द वर्ल्ड्स बेस्ट रेफ्रिजरेटर और द वर्ल्ड्स बेस्ट whatever, this is not something that lawyers are allowed to do, and how lawyers are allowed to advertise themselves. और इसमें एक और भी जो बहुत ज़रूरी चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि ये जो एक एक्सप्लिसिटली जो एक टाउटिंग का जो एक है प्रैक्टिस, वो वकीलों के लिए स्ट्रिक्टली मना है.
تو ہم کسی اور کو یہ کمیشن نہیں کر سکتے کہ آپ جا کے ہمارے لیے کلائنٹس ڈھونڈیں، خاص طور پہ کسی نان لائر کو، اور ان سے پھر یہ کہیں کہ آپ ان کو انگیج کریں اور جو فیس ہے ہم وہ سپلٹ کریں گے. That is considered touting and that is not permitted in the profession. اور یہ اسپیسیفکلی جو کینن نمبر 136 ہے اس میں یہ نوٹ کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے that you should not share your compensation for legal services with a non-lawyer. So I don't think that this precludes, for example, کہ جیسے ہمارے آفیسز میں جو اسٹاف ہیں جو کورٹ کلرکس جو نان لائرس ہیں، obviously ہم ان کو سیلریز ان کو تنخواہ تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی کا بریف کر رہے ہیں، کسی کا کیس کر رہے ہیں، تو ہمیں جو فیس مل رہی ہے وہ ہمارے لیگل سروسز کی فیس مل رہی ہے، تو ہم یہ فیس کسی نان لائر کے ساتھ اسپلٹ نہیں کرنی چاہیے ہمیں. دیٹ وڈ بی unethical. اب یہ بھی ہمیں کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں کسی اور کو اب انگیج کرنا چاہ رہے ہیں کسی میٹر میں. اب ہمیں اس کو obviously کلائنٹ کی کا حق بنتا ہے کہ وہ ڈس انگیج کریں آپ کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی اور کے پاس جائیں، اور ان ایتھک کیننز میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم کو ایسی چیز پرسنلی نہیں لینی چاہیے. So it says that a client's proffer of assistance of additional advocates should not be regarded as evidence of want of confidence, but the matter should be left to the determination of the client. تو سملرلی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی اور وکیل نے پھر وہ بریف ایکسیپٹ کر لیا ہو، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم ان کی طرف کوئی ناراضگی دکھائیں یا ان کی طرف ہمیں کوئی بدمزگی ہو، کیونکہ کلائنٹ کا حق ہے کہ وہ کسی اور وکیل کے پاس جائے، ان کا بھی حق ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں. لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ایز این ایڈوکیٹ آپ کو کسی اور کا بریف ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے اگر اس ایڈوکیٹ کو پوری اپنی پیمنٹ نہ ملی ہو یا جتنی سروسز انہوں نے رینڈر کی ہوں اس کو ان کو صحیح طرح سے کمپنسیشن نہ ملی ہو. تاکہ ہماری اوبویسلی ایز اے پروفیشن ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر ہمارے کسی ایڈوکیٹ کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے کہ ان کو پرومس کیا گیا ہو کہ کوئی فیس ہو ان کو نہ دی گئی ہو، تو پھر ہمیں اس میٹر میں انگیج نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آئے اینڈ they have paid to whatever extent to have performed their services and they want to go to somebody else, you should obviously allow that to happen. You should be all right with that. اور جو پروسیجر ہے سندھ چیف کورٹ رولز میں کہ آپ درخواست ڈالیں کہ آپ کا وکالت نامہ ڈسچارج ہو جائے، وہ آپ کو پھر اپروپریٹلی کر لینا چاہیے. I think overall with respect to اور یہ I think last point ہے جو میں پھر emphasize کروں گی کہ ہم نے پہلے بھی when we talked about our duties to clients ہم نے یہ emphasize کیا تھا کہ we are not a party, we are lawyers. تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حالانکہ ایز ایڈوکیٹس کیونکہ ایک ایڈورسیریل سسٹم ہے، ہمارے جو فیلو ایڈوکیٹس ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ ہمارے خلاف کیسز میں اویئر ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے اپوزیشن سمجھیں یا ہم یہ سمجھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی یا زیادتی کر رہے ہیں بائی اپیئرنگ آن دا ادر سائڈ. اور ہمیں اپنی آرگیومنٹس میں جب ہم کورٹ میں ہوں تو ہمیں بھی ایک ڈیمینر رکھنا چاہیے، ایک رسپیکٹفل لہجہ رکھنا چاہیے. اب انفارچونیٹلی کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ ہم اپنا ایک کیس آرگیو کر رہے ہوتے ہیں، the lawyer on the other side is interrupting. They're not letting us complete the argument. They are making accusations out of turn against our client, not allowing us to present the case, and that is not ethical. And not only is that unethical, I think that's also unnecessary. آپ آئیں، آپ اپنا کیس پریزنٹ کریں اگین ٹو the best of your knowledge and your ability. آپ اب ادر سائڈ کو پورا موقع دیں کہ وہ اپنا کیس پریزنٹ کریں، بیکاز ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے، ان کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے. اور اگر آپ کو کچھ لگے کہ انہوں نے بات صحیح نہیں کی ہے تو پھر آپ اس کو ریبٹ کریں. آپ کو پورا موقع ملنا چاہیے ریبٹ کرنے کا.
لیکن یہ کہ آپ کسی اپنے فیلو وکیل کو صحیح طرح سے آرگو کرنے کا موقع نہ دیں should not be the case. And I think in general ethics also demands کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کسی کیس میں اپیئر نہیں ہو سکتے اس دن تو ایتھیکلی آپ ادر سائڈ کو پہلے سے بتا دیں کہ میں ایڈجرنمنٹ ریکویسٹ کروں گا. آئی تھنک دیٹس اونلی اپروپریٹ. سملرلی اگر آپ کی جو اپوزنگ وکیل ہیں وہ اگر آپ کو بتائیں کہ مجھے ایڈجرنمنٹ لینی ہے بیکاز آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل اور بیکاز فار وٹ ایور ریزن یو شوڈ آلسو بی انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ. یہ نہیں کہ پھر آپ کورٹ میں آئیں اور پھر آپ انسسٹ کریں کہ یہ معاملہ چلے اف دیر از اے ویلڈ ریزن. Obviously, agar repeated adjournments hain for the sake of prolonging litigation, then you are in your right, but there has to be some respect and cooperation. I think ethics requires that. So I think with that, I think we can wrap up. There is a section in the canons which is on our duties. Madam, میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہوں. جی آئی تھنک بس میں ایک تھوڑا سا آئی تھنک 2-3 اور پوائنٹس دوں کہ پھر اس کے بعد ایک Q&A کر لیتے ہیں. I think just take 2 minutes. Okay, ٹھیک ہے, all right. I think maybe I will step into. So I think duties with regard to the public اس کا ایک سیشن کل ہوگا تو I will need to cover that. السلام علیکم میڈم, میرا نام بشرا ایڈوکیٹ ہے. میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میرے یہ ایک کلائنٹ آئے تھے 550 میں ان کی گاڑی بند ہوئی تھی تو میں نے 523 میں اپلیکیشن لگائی اور جج صاحب چھٹیوں پہ گئے تھے ونٹر ویکیشنس پہ. وہ 8 دن کی چھٹیوں پہ آئے. میں روزانہ جاتی رہی کورٹ میں اور لنک جج کے پاس جاتی تھی, پھر وہ پی او کر دیتے تھے. لیکن 8ویں دن یہ ہوا کہ وہ کچھ وکیل ایسے ہیں جنہوں نے کورٹ میں ایسے بندے چھوڑے ہوئے ہیں جو کہ کلائنٹس کو مس گائڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے وکیل صاحب تو گھر سے جا کے آرڈر کروا دیتے ہیں اور ایک دن میں آپ لوگوں کو کروا دیتے ہیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں, آدھے گھنٹے میں آرڈر ہو جاتا ہے, یہ میڈم نہیں کر رہی, ایسے یعنی کہ بندے چھوڑے ہوئے ہیں نا. تو ان میں سے ایک بندے نے کیا کیا, ایک وکیل صاحب سینئر وکیل صاحب کے بندے نے میرے کلائنٹ کو خراب کیا اور اپنے پاس لے جا کے اسے آدھی فیس لے لی. اور جب مجھے اس چیز کا پتہ تھا, میں سمجھی شاید کہ اس کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی, میں 2 وکیل حضرات کے ساتھ ان کے پاس گئی, ان کو بولا بھائی آپ ذرا ان کو سمجھائیں. تو انہوں نے مجھے مونچھوں کو تاؤ دے کے بولا کہ میڈم یہ ان کو فیس بانٹنی ہے نا تو ان کو بانٹنے دینا تو کیا جاتا ہے آپ کا, اگر یہ مجھے بھی فیس دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ان کا دماغ امریکہ سے بھی ہو کے آ جائے گا, ان کا دماغ چینج نہیں ہوگا, یہ اخروپی لوگ دماغ ہے, چھوڑ دیں آپ ان کو, ہم دونوں ایسا کریں گے منڈے کو جا کے نا ان سے ریلیز آرڈر بنوائیں گے, جیسا منڈے کو آ جائیں گے. تو انہوں نے کیا میرے ساتھ ڈرامہ بازی کی کہ انہوں نے سیٹرڈے کو جج صاحب آ گئے کتنے دن کی چھٹیوں کے بعد اور سیٹرڈے کو انہوں نے جا کر ریلیز آرڈر بنوا کے بندے کو وہ ریلیز آرڈر لے کر اپنے دفتر میں جا کے اس سے کلائنٹ سے فیس وصول کر دی. اور جب میں منڈے کا کورٹ میں گئی تو پتہ چلا وہ تو سیٹرڈے کو اپنا کام کر کے جا چکے. اور جب وہ مجھے کورٹ میں ملے, میں نے کہا آپ نے مجھ سے چیٹنگ کی ہے, آپ نے غلط کیا ہے, یہ فیس میری بنتی تھی, میں نے سارا کام کیا تھا. تو کہہ رہے ہیں تو کیا ہوا, جو کر سکتی ہو کر لو. میڈم سینئر وکیل ہیں وہ اور بہت زیادہ یہاں پہ الیکشنس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, پریزیڈنٹ کے الیکشنز لڑ چکے ہیں اور انہوں نے اتنا مس بہیو کیا میرے ساتھ. میں نے بار روم میں اپلیکیشن لگائی بھی اپنی, انہوں نے ان کو بول دیا جو کر سکتے ہو کر لو, میں نہیں دوں گا. اب اس کے لیے کیا ایتھکس ہیں, ان کے لیے کیا ایتھکس کیا ہیں, ہمارے لیے سارے ایتھکس ہیں لیکن جو سپر سیڈ کرتے ہیں دوسرے وکیل حضرات وہ کیا کریں. اور سیکنڈ پھر میں نے ان کی فائل میں سے ان کا وکالت نامے کی پکس لے کے میں نے کے بی اے میں اپلیکیشن لگائی. انہوں نے جب انہوں نے آ کے وہاں پہ دیکھی کے بی اے میں, انہوں نے کہا ہاں وکالت نامہ تو میرا ہے اور میرے جونیئرس کے بھی سائن ہیں, میرے بھی سائن ہیں, لیکن میرے تو بہت سارے یہاں پہ بار میں گھومتے رہتے ہیں, پتہ نہیں میڈم نے کہاں سے, حالانکہ ایکیوز کلائنٹ جو وہ سب کا نام لکھا ہوا ہے, کیس نمبر سب کچھ ہے. پھر انہوں نے کہا آپ نے جب وہ کیا کہنا کورٹ میں گئے اپنے جونیئر کے تھرو انہوں نے وہ پھٹوا دیا, نکلوا لیا وہاں سے اپنا وکالت نامہ, اور وہاں کیا کہ اپلیکیشن کے بی آفس میں لگا دی کہ آپ میرا سرٹیفائڈ وہ کیا نام ہے سرٹیفائڈ کاپی لے کے آئیں. میں کہاں سے لے کے آؤں جب اس نے وہاں سے وکالت نامہ پھاڑ دیا اپنا, اور فیس لے کے وہ بیٹھ گیا اپنے آفس میں جا کے, کلائنٹ بھی چلا گیا, اس کا کام ہو گیا. تو اس میں تو obviously آپ جو ہم نے جو کیننس ڈسکس کیے ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ کئی وائلیشنز ہیں,
मतलब एक तो जो हमने कहा कि किसी को गारंटी करना कि मैं आपका काम कर दूँगा, ये बिल्कुल अनएथिकल है। दूसरा कि आप किसी क्लाइंट का केस ले लेना हालांकि उन्होंने पहले किसी वकील को एंगेज किया हो जिसकी उससे फीस ना दी हो, तो ये भी एथिक्स के खिलाफ है। और फिर ऑब्वियसली आप जिस तरह बयान कर रही हैं कि उनका फिर आपसे जिस तरह रवैया था, जिस तरह से उसने बात की, दैट वाज आल्सो नॉट बिकमिंग ऑफ द डिग्निटी ऑफ एन एडवोकेट। तो जो कैनन्स हैं उसकी तो आपने जो मुझे बताया उसकी कई प्रोविजंस की खिलाफ वर्जी हुई है, तो आपने जो कंप्लेंट डाली है उसका फिर इसी बुनियाद पर फैसला होना चाहिए। हेलो, ओके, नेक्स्ट जी मैम, मेरा क्वेश्चन है जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मेरा क्वेश्चन है मैम, जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर की फीस बड़ी तय होती है कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसने क्या फीस लेनी है, उधर वो कोई बार्गेनिंग नहीं होती। लेकिन चूँकि हमारा शोबा ऐसा है, हम क्लाइंट की अस्पताल देख के फीस उससे तय करते हैं। ये कुछ ऐसी रियलिटीज है जो हम हर चीज़ कहने वाली बात इम्प्लीमेंट करना सोसाइटी में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे बहुत से हमारे क्लाइंट्स हमारी सोसाइटी में ऐसे होते हैं जिनसे कोई भी जुर्म हो चुका होता है और फिर वो आते हैं अपने केस को, तो वो जिस वकील के साथ भी उनका अटैचमेंट हो जाती है, कोई वकील कोई उनको रेफ़र कर देता है। अब वो वकील के रहमो करम पर होते हैं। डेफिनेटली तमाम लोग ईमानदारी से चाहते हैं अपने केस को लड़ें, लेकिन मैं समझता हूँ क्लाइंट्स को एक प्रिविलेज मिलना चाहिए कि एटलीस्ट हमारे कोर्ट्स में, चाहे वो सेशन कोर्ट्स हों या हाई कोर्ट हों, उधर कुछ ऐसा एक डेस्क होना चाहिए कि अगर कोई क्लाइंट कोर्ट में कोई भी केस लेकर आए और वकील उसकी मर्जी वो जिसको भी करना चाहे, लेकिन उस डेस्क पे अपने केस से रिलेटेड अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहा है तो उसको वहाँ पर ईमानदारी से वो इन्फॉर्मेशन दी जाए। और प्लस ये है कि ड्यूरिंग इस प्रैक्टिस के दौरान, क्योंकि कदम कदम पे क्लाइंट अपनी फीसेस दे चुका होता है, परेशान होता है, उसके बाद किसी का कोई डिस्प्यूट बन जाए, वो शिकायत लेके जाए, बाद लोग तो इतने तंग आ चुके होते हैं वो डिस्प्यूट्स पे शिकायत ले जाना भी मुनासिब नहीं समझते। तो एटलीस्ट जब वो केस डिस्पोज ऑफ हो जाए तो उस क्लाइंट एक फीडबैक फॉर्म भी होना चाहिए कि आया आपका इस हवाले से क्या तजर्बा रहा, या कोर्ट में किसी ने, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ चीज़ें बड़ी हद समझ के दी जाती हैं कि फाइल मूव कराना है, देना है, आपने पेशकार को देना है, वकील को देना है, तो क्लाइंट्स की हमारे बारे में राय अच्छी नहीं है बदकिस्मती से। तो इन चीज़ों को अगर इस तरीके से फीडबैक क्लाइंट का भी होना चाहिए कि आया कोर्ट के साथ वो जिस जस्टिस लेने के लिए गए थे, जस्टिस तो मिला ही मिला, वो तो मेरिट पे डेफिनेटली मिला होगा, लेकिन जो उनका जो तजर्बा रहता है उसको भी हम किसी को पनिश ना करें, एटलीस्ट उस पर्सन की भी सर्विस होनी चाहिए ताकि वो क्लाइंट्स के साथ अपना रवैया जो उसको ये हो कि उस पर भी चेक एंड बैलेंस है, चाहे वो कोर्ट एम्प्लॉई हो, चाहे लॉयर हो, एनीवन, हर आदमी जवाब दे कहीं ना कहीं, उसको अच्छे अंदाज में अलग से सेपरेट उसको बताया जाए कि आपके लिए आप उसको बेहतर करें चीज़ों को। अगर ये हो तो इससे क्लाइंट्स का और एक एतमाद जो है कोर्ट्स पर बढ़ेगा। Especially my question about family cases. Mixture of mostly in family cases, mixture of मिर्च मसाला तड़का। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह जब भी कोई लेडी बाय वे ऑफ तलाक किसी से जा रही थी, उनके ऊपर बहुत सारे मैंने क्लाइंट और डब्ल्यू देखती हैं, तो मोस्टली उसमें आपस में कंप्रोमाइज़ की बात नहीं होगी, काम बिगाड़ने वाली ज़्यादातर बात होती है। मीन्स एक लेडी है उन्होंने काम को खुला लेगी, मेरे हस्बैंड में उसकी वीक पॉइंट की कोई है, उसको उन्होंने 20-50 तक पॉइंट्स लिख किए, इसमें ये भी है मेंटल हरासमेंट। तो काइंडली मुझे ये अच्छा, दूसरी उसमें ये बात है कि मेंटेनेंस के हवाले से ज़्यादातर जो फेक्स देखे जाते हैं कि एक या दो होते हैं, किसी वजह से वो मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा, या खुला का भी कोई और रीज़न था। ज़्यादातर में जो हमारे दोस्त विकला हैं वो इतना तड़का लगा देते हैं क्लाइंट में और डब्ल्यूएस में, जब उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो रही होती है तो कंप्रोमाइज़ के लिए कोई भी जो बात बनने वाली होती है ज़्यादातर वो ख़त्म हो जाती है, हर कोई अपनी अना का इशू बना ले। तो उनके लिए काइंडली हमें कोई सजेस्ट करे, तो हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आ गई किसी लेडी की तरफ से हमें खुला चाहिए,
तो उनके हस्बैंड के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी होती हैं, तो हम पढ़कर हमें ही शर्म आ रही होती है कि हम इसके अगेंस्ट क्या लिखें। कम अज कम हम सिर्फ उसको सिंपल पीरियड में वो लिख लेते काफ़ी हो गया अभी, तो काइंडली हमें वो सजेस्ट करें। और मैडम आपने एक केस का अभी शेयर किया था, वो काइंडली वो भी हमसे शेयर करें, ये जो केस रिपोर्ट हुआ था मनी बैक गारंटी जी। और मैडम फिलिंग के लिए और डब्ल्यूएस के लिए काइंडली सजेस्ट करें क्या करें। तो इसका मुख्तसर जवाब ये होगा कि देखिए, जो एक तो जो आपने कहा तड़का वो नहीं लगाना चाहिए। देखिए अल्टीमेटली ड्राफ्टिंग हम करते हैं, ठीक है, और मैंने जैसे कहा कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि क्लाइंट जो भी हमें कहे कि आपने कहना है कोर्ट में तो हम वो कहें, ये बात नहीं है बिल्कुल। तो हमें बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं उनको मिसरिप्रेजेंट किए बगैर पेश करना है। अब जहाँ तक आपने स्पेसिफिकली खुला का जिक्र किया कि जिसमें बहुत सारी फिर उसमें कंप्लेंट्स होती हैं, तो खुला का तो ऑब्वियसली वी नो कि वो हमारा एक नो फॉल्ट है, राइट। तो अगर वो आपको कोई प्रूव नहीं करना पड़ता ये स्पेसिफिक एलिगेशंस, अल्टीमेटली अगर औरत ही कहे कि रेकन्सिलिएशन इज़ नॉट पॉसिबल तो खुला मिल जाता है। सो इन दैट सेंस वी कैन ऑल्सो टेल द क्लाइंट कि ये जो सब आपने जो एडिशनल चीज़ें डाली हैं इसमें शायद कुछ रेलिवेंट हो, लेकिन बहुत कुछ जो आप बहुत डिटेल्स में जा रही हैं फॉर दिस पर्पस आर नॉट directly relevant, so that can be explained to the client as well. लेकिन obviously कुछ जो cases होते हैं, अगर आप maintenance पे जाएं, अगर आप custody पे जाएं, तो उस पर जो other side का रवैया है वो relevant होता है। तो as lawyers we have to consider what is relevant, what is not relevant and present that. और clients को हमें समझाना चाहिए कि आप अगर आप सिर्फ सच फैक्ट्स हमें भी बताएं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है कि हम ऑनेस्टली कोर्ट को करें, और जो एग्जैजरेशन इज नॉट अलाउड, मिसरिप्रेजेंटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, ऑलराइट, ओके, थैंक यू। सब लोग का शुक्रिया। वी रिज्यूम टुमारो एट 2 o'clock, 2 to 4, and we hope to conclude our lecture on professional ethics. आप सब लोग का शुक्रिया। थैंक यू।